Hope you all are getting me well. So okay, let's go to have the recap of the chapter. What we are discussing, chemical kinetics. Already 2 to 3 lectures has been done, and we have seen there are 3 sections here in the chapter. Number 1 section is dealing with fundamental principles and concepts of chemical kinetics. Middle section is dealing with core concept of chemical kinetics and its mathematical reductions. And the third part is dealing with some supportive theories to the chemical kinetics principles. Okay. So now, let's have a recap what we have seen here in first 2 lectures. We know very well chemical kinetics, as the name suggests. This is the chapter which is related with time frame, time of the reaction. That is, you can say simply a rate of a chemical reaction. So this is the way how this chapter is related with. So that we know well. So now, as in organic chemistry, we never consider a time factor for the reaction. Here in physical chemistry, consider a time factor required for the completion of the reaction. So there are 3 types of reactions: slow reactions, moderate reactions, and fast reactions. Here in the chapter, we are not concerned with the fast and slow reactions. We are concerned with moderate type of reaction. Moderate type of reactions are the reaction which completes in few seconds, few minutes, few hours, few weeks, or few days. That is what we can say. Then here in the chapter first, we see what is the rate of chemical reaction. या फिर यू कैन से सिंपली व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है. शायद मैंने पहले 2-3 लेक्चर में कभी उसके बारे में बात नहीं की, लेकिन this is a chapter, chemical kinetics is a chapter which is dealing with the rate of chemical reaction and the factors affecting the rate of chemical reaction. That is what we can say. Simple definition of this chemical kinetics. So, chemical kinetics is a branch of physical science where we are dealing with the rate of chemical reaction and the factors affecting the rate of chemical reaction. Simple. Now, think is that what is the rate of reaction? We also say that change in concentration with time or change in concentration upon time taken is called the rate of chemical reaction. Then we need to reveal this rate of reaction can be given by 2 different ways, that is average rate and instantaneous rate. So average rate is change in concentration over a given time period is called the average rate of reaction. And what is instantaneous rate? That is the change in concentration at any instant or any instant of time is called as, you can say, instantaneous rate of chemical reaction. That is also what we have seen. Furthermore, we have seen the factors affecting the rate of chemical reaction. We have seen that there are 3 major factors. Number 1 is rate law. Number 2 is nothing but the rate constant, and number 3 is nothing but that is order of reaction. So they are the 3 factors what we have seen. ठीक है. So now इसके साथ पहला सेक्शन हमारा कल खत्म हुआ था, जिसके अंदर हमने इवन मॉलिक्युलरिटी एंड द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये भी हमने डिस्कस किया था. Today we are going to enter into the core concept of this chemical kinetics. मतलब ऑलरेडी वी हैव एंटर्ड इन दैट, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हम उसके अंदर एंटर ही कर देते, फर्स्ट सेक्शन में एंटर ही कर देते. लेकिन अभी जो खास तौर पे ज्यादा यूजफुल कॉन्सेप्ट है हमारे जो मिडिल पार्ट में इस चैप्टर के आता है, मिडिल सेक्शन में आता है, that is nothing but you can say core concept, and we have to discuss this integrated rate law for a chemical reaction. Integrated rate law. Okay. So before entering into the integrated rate law, we need to know what is the rate law actually, जो हमने already discuss किया हुआ है. Okay. So we'll have bit recap at the same time. We'll start with the topic that's called integrated rate law. So let's move to the topic integrated rate law. So we have to discuss this chapter, this topic called integrated rate law. Now, integrated rate law के लिए हमें जाना है. Integrated rate law क्या होता है हम बाद में डिस्कस करेंगे. उससे पहले rate law क्या होता है? Rate law. Once we know the rate law, we can understand what is integrated rate law. ठीक है. So already हमें reaction देखा. Consider a reaction. और अगर हम ऐसा मानते हैं, consider a first order reaction. चलो रिएक्शन लेते हैं. कंसीडर अ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर बात मिलेगा. कंसीडर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन हमने कंसीडर किया, A plus B gives you product. ये हमने कल डिफाइन किया. A plus B gives you product. ये एग्जांपल कई बार देखा है, ये बार-बार इस चैप्टर के अंदर आएगा. Applying law of mass action, तो we know very well. Applying law of mass action. So when we apply law of mass action to this reaction, the rate is, therefore according to this, the rate is directly proportional to concentration of A raised to X, concentration of B raised to Y. And
solving this, simplifying this, R is equal to, instead of this K, that is proportionality constant, and this A raised to X, and this is B raised to Y. And this is nothing but the rate law. This is nothing but the rate law. Be clear. This is rate law. जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया. मैंने ये भी कंफ्यूजन दूर किया कि रेट लॉ माने we assume that there should be some law of that. Yes, it is law, but it is actually a mathematical equation. It is actually a mathematical equation. So rate law is a mathematical equation which gives a rate of chemical reaction in terms of molar concentration of reactant raised to suitable power, and this is nothing but the rate law. Where this K is nothing but the rate constant. So this K is nothing but the rate constant, and order of reaction is nothing but order of reaction in terms of A is X, order of reaction in terms of A is Y, and overall order of reaction is equal to X plus Y. Overall order of reaction is X plus Y. अब ये तीनों factor, number 1 rate law, number 2 rate constant, number 3 order of reaction, that is overall order of reaction. ये तीनों topic हमने देखे. These are the 3 factors which affect the rate of chemical reaction. कल तक के lecture में ये सारे topic हमने properly discuss किए थे, no doubt. Clear with this? Now thing is that we know rate law. Rate law is a mathematical equation. Rate constant is nothing but the K, which is the characteristic of that reaction, which doesn't depend upon concentration but depend upon temperature. And order of reaction is nothing but the sum total of exponent, that is X plus Y. So these are the X plus Y, and this is nothing but the sum total of the exponent in the rate law. That is what we get. Okay. Now we have to discuss integrated rate law. अब देखिए ये भी rate law, ये भी rate law. और at the same time हम जानते हैं कि इस रिएक्शन का रेट कैसे दिया जाता है. तो रेट हमने एकदम स्टार्टिंग में देखा था, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन. सो रेट इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन dt प्लस इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन dt. ये हमने उसके अंदर इस फॉर्मेट में हमने डिस्कस किया था. ओके, अभी इसकी खासियत ऐसी है, इस चीज की खासियत ऐसी, रेट लॉ की खासियत है कि ये रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन तो देता है, बट दिस रेट लॉ इज नॉट यूजफुल टू कैलकुलेट the concentration of reactant with time. Say for example, अगर हम ऐसा रिएक्शन लेते हैं, suppose we have the reaction थोड़ा बदल देते हैं, A gives you product, ऐसा रिएक्शन लेते हैं, A gives you product. Again, applying law of mass action क्या मिलेगा हम लोगों को? That is R is directly proportional to concentration A raised to X. अगर हम ऐसा मानते हैं कि this is the first order reaction, so suppose consider a first order reaction. So यहाँ हमने क्या किया? We have considered this a first order reaction. I have written consider first order reaction. So A gives you product is a first order reaction. So यहाँ पे A raised to X नहीं आएगा क्योंकि X का value 1 है. We have considered this is the first order reaction. This is the first order reaction. R is equal to A raised to 1 है. Therefore, R is equal to K concentration A raised to 1. Being this is the first order. This is equation number 1. Now, इस reaction का rate कैसे देंगे हम लोग? R is the rate. And rate is directly proportional to K into concentration of A. But rate is given as rate is equal to minus dA upon dt. This is the rate. This is equation number 2. Can we put equation number 2 here instead of this R? So instead of R, we can put this minus dA upon dt is equal to K concentration A raised to whatever that. This is equation 1. ये हम लोग यहाँ पे मिल जाता है. So ये equation हम लोगों को मिल जाता है. Okay. अब देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, मतलब अगर आप अच्छी तरह समझे हुए पहले और टॉपिक, तो मैंने कुछ नहीं किया कि दिस इज द रिएक्शन, A gives you product, A gives you product. ग्राफिकली अगर डिस्कस करते हैं, देखिए थोड़ा सा विल हैव अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. सो दिस इज द कंसंट्रेशन एंड दिस इज द टाइम फैक्टर. मतलब y axis we have given a time factor, sorry x axis, and y axis we have given a concentration factor. Now initially being this is the reaction, or which is the first order reaction. This is first order reaction. Be clear? First order reaction. So this is the first order reaction. So देखिए concentration of A is initially somewhere here. Concentration A is here. This is concentration of A. Or with the time, this concentration of A decreases. Being reactant, हम जानते हैं किसी भी reaction में reactant concentration always decreases with the time, and product concentration always increases with the time. Is it clear? So that's why concentration of A has to decrease and concentration of this B or product has to increase. So concentration of A decreases with the time, like this. This is the time with decreases with the time. So now this is a concentration of A. I can see this is the concentration of A. This is the curve. ये curve
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है वो डिक्रीज होता है विद टाइम, टाइम प्रोसीड होगा तो ये कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। तो सपोज दिस इज ए नॉट व्हिच इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, दिस 8 एट टाइम t, मतलब दिस इज टाइम t इज इक्वल टू 0। हमने x एक्सिस पे टाइम लिया है, तो टाइम t इज इक्वल टू 0, जबकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन a नॉट इतना है, मतलब जब टाइम 0 है तो a का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा। हम जानते हैं किसी भी रिएक्शन में इनिशियली हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट बाद में बनेंगे। पहले हमारे पास हमेशा रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट बाद में बनेंगे। सो दैट्स व्हाई a का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा इनिशियली, a नॉट, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0। as a reaction starts, proceeds, reaction proceeds, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी है, ऐसा टाइम आगे चलेगा, फिर ए का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि ए रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस विद टाइम, whereas प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस विद टाइम। सो ये कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा, यहां तक आएगा। सपोज दिस इज 80 where time t is equal to t, t टाइम में ए का कॉन्सेंट्रेशन 80 इतना बचा है। सो ए हमारा रिएक्टेंट है जिसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A नॉट है जब टाइम t is equal to 0 है। As the time proceeds, A नॉट decreases and that becomes 80 when time t is equal to t। अब t हम 5 मिनट ले सकते हैं, 10 मिनट ले सकते हैं, जब भी आपको देखना है उस टाइम पे हम ले सकते हैं। बट ये देखेंगे कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ज्यादा रहेगा और बाद में कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम रहेगा। Got it? Excuse me. Sorry, excuse me. So, initial concentration of A naught is higher and the final concentration, whatever at time t must decrease। तो जिस तरीके से टाइम बढ़ेगा concentration कम होता जाएगा। ये ग्राफिकली हमें दिखाई देता है। अभी हमारे सामने प्रॉब्लम है कि हम इस रिएक्शन का ये रेट लॉ लिखते हैं, ये भी रेट लॉ है, ये भी रेट लॉ है, ये रेट लॉ है, बस उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है ना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, रेट इज इक्वल टू k into a, और बीइंग दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन x is equal to 1, है ना, ये अपन लिखा है। Now, R rate होता क्या है? एकदम स्टार्टिंग में देखा है, rate is change in concentration upon time taken. So instead of R, we can write change in concentration upon time taken, that is dA upon dt is equal to Ka. ये हमारा rate is the equation, and this is nothing but the rate law. So this is also rate law, and this is also rate law. दोनों rate law है, बस modifications है, nothing more than this. So ये दोनों भी rate law है। अभी सवाल है कि हमें डिस्कस करना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ के लिए क्यों जाना है जबकि हमारे पास ऑलरेडी रेट लॉ है, फिर हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ के लिए जाना क्यों पड़ता है? The reason behind this is concentration of A decreases with the time. So initial time t0 है और ये final time t इतना है, मतलब कि 10 मिनट्स है। अगर हम in between 5 मिनट में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, अगर निकालना चाहते तो कैसे निकालेंगे? 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद कितना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्ट होगा और कितना कॉन्सेंट्रेशन बचेगा, दैट वी नीड टू कैलकुलेट। तो इसके एप्लीकेशंस मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके एप्लीकेशंस ये है कि मानो शुगर इंडस्ट्री है, फार्मेक इंडस्ट्री है, मेडिकल इंडस्ट्री है, फार्मेक इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री में क्या होता है कि जब शुगर का सिरप बनाया जाता है उस टाइम कई सारे H2SO4 वगैरह एडिटिव्स के अंदर डाले जाते हैं। आइदर रिएक्शन इज कंप्लीटेड और नॉट, दैट हैज टू बी चेक्ड इन बिटवीन। तो समय समय पे वो रिएक्शन चेक किया जाता है कि आइदर रिएक्शन इज कंप्लीटेड और नॉट, हाउ मच इज कंप्लीटेड, हाउ मच एक्सटेंट अप टू दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड। और द मोमेंट we got the figure that reaction is complete, सारी चीजें रोक दी जाती है, हीटिंग रोक दिया जाता है, केमिकल एडिशन रोक दिया जाता है, सारा प्रोसेस रोक दिया जाता है। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर इन द इंडस्ट्री एप्लीकेशन, डायरेक्ट एप्लीकेशन इन द इंडस्ट्री। सो इसका मतलब है हम लैबोरेटरी में रिएक्शंस करते हैं, अलग बात है ना। लैबोरेटरी में हमें टीचर बोलते हैं कि आपको रिएक्शंस करना है, कभी-कभी हम लोग को बोला जाता है कि आपका रिएक्शन का एंड पॉइंट क्या है, कलरलेस टू फेंट पिंक। लेकिन हम लोग कभी फेंट पिंक कलर बहुत ही कम बार हमारा आता है, बहुत बार हमारा डार्क कलर आता है। कभी-कभी तो कुछ लोगों को डार्क कलर अच्छा लगता है, इसलिए ज्यादा केमिकल डाल के डार्क कलर ले लेते हैं, है ना। That is the what practically happens in the laboratory. But thing is that theoretically अगर देखते हैं कि when a faint pink color happened, at that time reaction is completely over. जब डार्क कलर आ चुका है हमारा सॉल्यूशंस को, हम जो लैबोरेटरी में सॉल्यूशंस में रिएक्शन करते हैं, डार्क कलर आ चुका है, मतलब हमारे केमिकल ज्यादा हो चुके हैं। तो जितना जरूरी केमिकल है उससे ज्यादा केमिकल हम उसके अंदर है, ऐसा उसका मीनिंग है। And that's why ये जरूरी है हम समय समय पे रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन मेजर करें। सो इस रिएक्शन के अंदर ए का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता जा रहा है विद टाइम। सो 1 मिनट में कितना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्ट हुआ, कितना बचा, 2 मिनट में इसका कितना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्ट हुआ, कितना बचा, 3 मिनट में कितना रिएक्ट हुआ, कितना बचा। ये अगर अलग-अलग टाइम इंस्टेंट पे हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, हाउ मच इज रिएक्टेड एंड हाउ मच इज रिमेनिंग, दिस इज नॉट पॉसिबल यूजिंग दिस रेट लॉ। दिस इज नॉट पॉसिबल यूजिंग दिस लॉ। रेट लॉ जस्ट गिव्स रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस फैक्टर, दैट्स ऑल। रेट इसके ऊपर डिपेंड करता है, इतना ही रेट लॉ बताया। लेकिन अगर हमें concentration of reactant at particular time निकालना है,
तो नहीं निकाल पाएंगे रेट लॉस, एंड दैट्स व्हाई दिस इंटीग्रेटेड रेट लॉ इज यूजफुल फॉर दैट. Integrated rate law is useful to calculate the concentration of A at any instant. कोई 2 मिनट में कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना चाहता है तो कर सकता है, कोई 10 सेकंड के बाद कॉन्सेंट्रेशन चेक करना करता है तो कर सकता है, किसी को 10 मिनट में कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा कैलकुलेट करना है तो कर सकते हैं. And that's why we need to go for integrated. So integrated rate law gives the relation between concentration of reactant with time, what concentration is reacted in given time and how much is remaining at that given time, that can be calculated by using this one. That's why integrated rate law gives the relation between concentration of reactant with the time, and we can calculate the concentration reacted and remaining by using integrated law, and this is simply impossible by using the rate law, and hence we have to go for the integrated rate law. Clear with this? So integrated rate law is important in that sense. तो अब देखिए integrated rate law हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिस्कस करते हैं. ये जो है दिस इज नथिंग बट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सो कंसीडर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. यहाँ पे हेडिंग है, तो यहाँ से अभी हमारा नया टॉपिक शुरू हुआ. ये तो पुराना है ना, ये रिकैप था. यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू हुआ, यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू हुआ. वी हैव टू हैव द इंटीग्रेटेड रेट लॉ. बट रिएक्शंस की जो ऑर्डर्स होते हैं, रिएक्शन कैन बी फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्शन कैन बी सेकंड ऑर्डर, रिएक्शन कैन बी थर्ड ऑर्डर, रिएक्शन कैन बी जीरो ऑर्डर, इवन रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल. अभी अलग अलग टाइप के रिएक्शन होते हैं, लेकिन 11th 12th में हमारा जो स्कोप है वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के साथ है. थर्ड ऑर्डर तो बहुत रेयर है, बहुत रेयरली रिएक्टेंट दिखाता है, और फ्रैक्शनल ऑर्डर ये 11th 12th में हमारा स्कोप है नहीं है. सो वो हायर स्टडीज में हम डिस्कस करेंगे. तो फिलहाल में हमारे 11th 12th का स्कोप जो है वो ओनली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के साथ है. सो इंटीग्रेटेड रेट लॉ किसी भी रिएक्शन का क्यों ना हो, फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर किसी भी क्यों ना हो, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद द टाइम. सो पहला देखेंगे हम लोग कंसीडर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. यहाँ पे हेडिंग ठीक से शायद मैंने लिखा नहीं है, आप पढ़ने में डिफिकल्टी महसूस करते होंगे, सो मैं इधर से लिखता हूँ यहाँ पे वापस. कंसीडर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सो कंसीडर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए गिव्स यू प्रोडक्ट. ओके, यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. So integrated rate law for first order reaction. First order reaction. Consider a first order reaction. Underline करने की बात है. This is compulsory. A first order reaction. हमने consider reaction consider किया first order. मतलब x is equal to 1. A gives you product. Applying law of mass action, we get R is directly proportional to A raised to x, and x का value कितना है 1. So A raised to 1. R is equal to K. A raised to 1. R is equal to d upon dt. क्योंकि rate इस reaction का minus d upon dt ही दिया जाएगा. Reactant है A minus d upon dt, minus being is the reactant. So R is equal to minus d upon dt, और यही रेट का वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, तो minus d upon dt is equal to K A, ये हम लोगों को मिल जाता है. So we have the equation. अब देखिए, we have the equation. Therefore we have equation. वही equation लिखता हूँ मैं. Minus dA upon dt is equal to K concentration A raised to 1. अभी just rearrange करते हैं. Just rearranging the equation. Rearranging the equation. अभी देखिए ये concentration टर्म है और ये भी concentration टर्म है, तो सेम concentration टर्म हम एक तरफ लेके आते हैं, तो ये इस तरफ लेके आता हूं मैं, तो there will be minus dA upon A is equal to dt उस तरफ लेके जाते हैं K dt. This is equation number 2. क्योंकि मैं इसे equation number 1 मानता हूं, we have, so this becomes equation number 2 after rearranging. Got it? ये हम लोग को मिल जाता है. Now being these are the concentration term and this is the constant and time, we have to integrate this equation between the limits. इस equation को integrate करना है. So integrating this equation between the limits. क्या limits है? A0 is the initial concentration when time t is equal to 0. हमारा reaction क्या है? A gives you product. तो A क्या है हमारा? Reactant. तो reactant concentration initial कितना है? A0, और time t पे कितना है? AT. So A0 is the initial concentration of reactant at time t is equal to 0, or AT is concentration of A after time t. जैसे देखिए ना हम लोग, मतलब आप मानो कहीं घूमने जाते हो, कभी आप मानो ऐसा कि आपके डैड ने कभी खुश होकर आपको पैसे दिए, जाओ और ये मेरे पैसे से कहीं घूम के आओ, और आपको दे दिया, मानो कि जाओ घूमने के लिए आपको एक 5,000 रुपए दे दिया और आपको बोला कि जाओ कहीं भी घूम के आओ दोस्तों के साथ, स्कूल ट्रिप के साथ घूम के आओ. जैसे हम घूमने जाएंगे, इनिशियली हमारे पैकेट में 5,000 रुपीज थे, हम घूमने चले जाते हैं, तो हो सकता है कि उसमें से हमने फिर पानी का बोतल खरीदा, 20 रुपए चले गए, फिर और हमने कुछ स्नैक्स ले लिए, फिर उसके लिए 50 रुपए चले गए. हमारे पास शुरुआत में 5,000 रुपए थे, धीरे धीरे खर्च होते जाएंगे.
घर आते समय वापस, मान लो आप 2 दिन के बाद कॉलेज के पिकनिक से घर आते हो, तो 2 दिन के बाद आपके पास 5,000 रुपए तो नहीं रहेंगे, 1,000-500 कुछ बचेंगे, बिकॉज बाकी आप परचेस करेंगे, ये वो शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, उसके ऊपर खर्चा होता जाएगा। यही है। ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है। जैसा टाइम प्रोसीड होगा ए नॉट डिक्रीज 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 होता जाएगा, जो एटी बनेगा एट टाइम टी। मतलब टाइम जब 0 था तो कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट था, विच इज इनिशियल, और टाइम जब टी है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो बन चुका है वो 80 है, मतलब दैट हैज डिक्रीज। तो वी कैन से हमें इंटीग्रेट करना है वेयर initial concentration of A is A naught at time t is equal to 0. So A naught concentration at time t is equal to 0 to final concentration of A is A t at time t is equal to t. Yeah. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस व्हाट वी कैन से, जो हमने यहाँ पे थ्योरेटिकली वही लिखा है। सो initial concentration is A naught at time t is equal to 0 up to the final concentration AT at time t is equal to, because this equation has to be integrated. Rate law has to be integrated, और integrate करना है तो लिमिट चाहिए। तो इनिशियल लिमिट क्या है A naught, फाइनल लिमिट क्या है AT, टाइम क्या है इनिशियल 0, फाइनल क्या है T टाइम। इसमें से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अभी ग्राफ में हटा दिया तो चलेगा। सो अभी देखिए इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू दिस, इंटीग्रेटिंग this minus dA upon concentration of A, और इसका लिमिट क्या है, concentration A naught to concentration AT, ये लिमिट है, is equal to minus integration of K dt when time t is equal to 0 to time t is equal to t। समझ आप लोग? तो हमने क्या किया, ये वाला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट किया between these limits A naught when time t is equal to 0 to AT when time t is equal to t। So this is concentration factor A naught to AT लिमिट्स है, और टाइम फैक्टर T0 to T ये हमारे लिमिट्स है, इसमें हमें इंटीग्रेट कर दिया। अभी इंटीग्रेट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप्स ऐसा होता है हमारा इसके अंदर का, दैट इज यू कैन से ln of concentration A here A naught to AT is equal to माइनस साइन बाहर है, K concentration टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म है, K कांस्टेंट टर्म है, उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो K will come out of this one K, and here T, here T is equal to 0 to T is equal to T, ये हमारा लिमिट रहेगा। गॉट इट? ये हमारा लिमिट रहेगा, इसमें हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर? तो अभी थोड़ा सा इस तरफ आ जाता हूं मैं। ओके, सो वी गॉट दिस वन, ये हमें मिलता है, तो हमें ln मिला। तो अभी ln जब इंटीग्रेट करके सॉल्व करते हैं तो ln ऑफ अपर लिमिट माइनस ln ऑफ लोअर लिमिट, इसका नेक्स्ट स्टेप ऐसा आएगा, ln ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A, अपर लिमिट क्या है 80 माइनस ln A नॉट। देखिए अपर लिमिट 80 है, लोअर लिमिट A नॉट है, तो ln के फॉर्मेट में जब सॉल्व करते हैं तो ln ऑफ अपर लिमिट माइनस ln ऑफ लोअर लिमिट, ऐसा हमारा ये एक्सप्रेशन होता है, इज इक्वल टू माइनस के तो कांस्टेंट है जिसका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा था, के कांस्टेंट जिसका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा था, और t माइनस t0, तो ये 0 ही बनेगा, तो t रहेगा, दिस विल बिकम एज अ t ओनली, so it will become t as, because वो 0 बन जाएगा because it's 0। so we have got this one, so therefore we got this one। now इसे सॉल्व करते हैं, तो अभी देखिए ये क्या होगा, माइनस हटाना है, तो ln हियर आएगा concentration AT अपॉन concentration A naught is equal to minus AT। ओके, अब ये माइनस साइन शिफ्ट करते हैं, माइनस इधर शिफ्ट करेंगे तो उल्टा बनेगा, सो हियर विल ln concentration A naught अपॉन concentration AT is equal to KT, ये माइनस इस तरफ शिफ्ट कर दिया, when we shifted the minus ये उल्टा हो जाएगा like this one, and we got this K। therefore अभी KT इस तरफ लेता हूं मैं, KT is equal to ये इस तरफ लेता हूं ln A naught अपॉन AT, जस्ट लिखने का तरीका है, इसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया हमने, ऐसा लिखो क्या और ऐसा लिखो, कम टू द सिमिलर वर्ड। गॉट इट? नाउ t इस तरफ लेके जाएंगे, t इस तरफ लेके जाएंगे, और ln को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ln को सॉल्व करेंगे, ln को सॉल्व करते हैं log base e, log base n के फॉर्मेट में क्या होता है, तो ln is equal to log base e, ln का मतलब होता है log base e, और log base e की वैल्यूज होती है 2.303 log base 10, ऐसी वैल्यूज। Instead of ln we can write log e, instead we can write ln, and दोनों का वैल्यू क्या होता है 2.303 upon log base, I'm sorry 2.303 into log base 10, this is the value of ln like this। तो ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो here kt is equal to 2.303 log base 10
concentration A naught upon concentration A टी ऐसा मिलेगा. Got it? टी ऐसा मिलेगा. अभी देखिए, अब देखिए, अभी टी इस तरफ लेके जाएंगे. Therefore K is equal to 2.303 upon T log base 10 concentration A naught upon AT. This is the final proof. This is the final proof. We got this final proof. K is equal to 2.303 upon T log base 10 A naught upon AT. ये हम लोग को फाइनल प्रूफ मिल जाता है. देखिए, स्टार्टिंग में मैंने बताया कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ की जरूरत क्या है हम लोग को. व्हाई वी नीड अ इंटीग्रेटेड रेट लॉ. हेडिंग इरेज हो गया यहाँ पे. सो वी कैन से इंटीग्रेटेड रेट लॉ. और किसका है? दिस लॉ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. First order reaction. This is the integrated rate law for first order reaction. Now, integrated rate law किस लिए जरूरी है? Because integrated rate law gives the relation between concentration of reactant with the time. अगर हम इस टाइम पे निकालना चाहते हैं कितना concentration है, इस टाइम पे निकालना चाहते हैं, इस टाइम पे निकाल सकते हैं, कर सकते हैं हम लोग. And this is by using this law. जिसके अंदर आप देखिए K is a rate constant of the reaction. जो already हम जानते हैं K is rate constant. T is the time. A naught is the initial concentration what we took it, and AT is a final remaining concentration. तो अब देखिए ना कि हम T का वैल्यू, मानो ये रिएक्शन हमारा 1 मिनट पे शुरू होता है, T is equal to 1 minute up to T is equal to 10 minute चलता है. Okay, up to T is equal to 10 minute रिएक्शन. तो सॉरी यहाँ पे 1 में 0 होगा, तो 0 to 10 minute रिएक्शन चलेगा. 0 to 10 minutes रिएक्शन चलेगा. हमें अगर यहाँ पे 5 मिनट रखते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास होगा, सॉरी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास होगा A नॉट. ये यहाँ पे रहेगा. T हमने 5 मिनट डाल दिया है, कि हमें पता है वी कैन कैलकुलेट AT. व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग, वी कैन कैलकुलेट. तो 5 मिनट के बाद कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा हम निकाल सकते हैं. 6 मिनट के बाद कितना कॉन्सेंट्रेशन हम निकाल सकते हैं. 7 मिनट के बाद कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा निकाल सकते हैं. 8 मिनट और 5 सेकंड के बाद कितना रिएक्टेंट बचेगा यहाँ पे निकाल सकते हैं. So this is the equation which gives the relation between concentration of reactant with time. How much concentration is reacted, how much is remaining. Using this equation we can calculate. तो initial concentration ये था, final concentration ये है, और time यहाँ पे आ जाता है. अगर initial concentration, final concentration पता है तो time निकाल सकते हैं. कितने टाइम में ये हो गया, मतलब whatever the concentration reacted. हमारे पास अगर मान लो A naught है और AT का इधर का वैल्यू आता है, AT का ये वैल्यू आता है, तो ये जो टाइम है ना हम निकाल सकते हैं by using this fact. So by using this equation. So that's why this is called the integrated rate law for first order reaction. So by using the integrated rate law, we can calculate first order concentration of reactant. That is first order reaction. Clear with this? So just write down this equation, everyone. It's important. Clear? Everyone got it? So this you can say integrated rate law. So integrated rate law के अंदर क्या क्या करना है बस एक बार देखिएगा. We have, this is the rate law of first order reaction. First order reaction का rate law है. Rate law को हमने rearrange कर दिया, concentration term दोनों एक तरफ लिए और time term इस तरफ ले लिया हमने. And इस equation को हमने integrate कर दिया between the limits. Initial concentration A naught at time t is equal to 0, AT at time t is equal to t. Time t is equal to 0 to time t is equal to t. इसमें हमने इंटीग्रेट कर दिया. तो दिस इज द इंटीग्रेशन. अब मास में इंटीग्रेशन आप देख चुके हो, तो इंटीग्रेशन इस तरीके से किया जा सकता है कांस्टेंट टर्म के साथ भी. मतलब इसके बाद एक ये ln का स्टेप होता है और एक कांस्टेंट टर्म का स्टेप होता है. आप जिसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप जा सकते हो, क्योंकि तुम में से काफी सारे बच्चों का मैथ्स होगा तो अकॉर्डिंगली आप जा सकते हो. सो वी गॉट दिस वन. और इसके बाद जस्ट हमने सिंपलीफाई करते चले.
यहाँ पे हमने ln का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और फाइनली वी गॉट दिस वन, जिसके अंदर k indicates the rate constant, t indicates the time, a0 is the initial concentration, at is a concentration remaining after time t. बहुत इंपॉर्टेंट है, at is a concentration remaining after time t. अब देखिए इसके अंदर एक छोटा सा अभी भी प्रॉब्लम है, एक छोटा सा प्रॉब्लम इस इक्वेशन के अंदर है कि ये जो इक्वेशन है इसमें k इंडिकेट करता है रेट कांस्टेंट, t इज अ टाइम, a0 इनिशियल कंसंट्रेशन और at कंसंट्रेशन रिमेनिंग आफ्टर टाइम t. तो अगर कंसंट्रेशन रिमेनिंग है तो रिएक्ट कितना हुआ, इनिशियल था a0, फाइनल है at, तो रिएक्ट कितना हुआ ये इस इक्वेशन से नहीं निकाला जाता. तो इस इक्वेशन का एक छोटा सा मॉडिफाइड फॉर्म हमारे सामने आ जाता है. अगर डायरेक्ट वैल्यू आपको चाहिए तो बिट मॉडिफाई कर सकते हैं इस इक्वेशन को. जैसे मैंने बताया आपको कि आप स्टार्टिंग में पिकनिक गए थे और 5,000 रुपए लेके गए पेरेंट्स से, और जब वापस घर आए तो कुछ खर्च करके आपने 5,000 रुपए लेके गए थे, घर आते समय वापस आपके पैकेट में 1,000 रुपया, मींस आपने 4,000 एक्सपेंस कर दिया. तो 4,000 जो एक्सपेंस हुए थे वो इस तरीके से रिएक्ट कितने हुए रहेंगे, कितना कंसंट्रेशन रिएक्ट हुआ. इनिशियल a0 है, फाइनल at है बचा हुआ, रिएक्ट कितना हुआ. जैसे कि हमें डिफरेंस लेना पड़ता है 5,000 माइनस 1,000, वैसा डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं है, सीधा सिंपल सा तरीके से निकाल सकते हैं. सिंपली consider A is initial concentration of A, or that is you can say A naught. So instead of A naught we can use A, which is initial concentration, whereas concentration reacted in time t, ये टाइम t है तो टाइम t is x. देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन a0 व्हेन टाइम t इक्वल टू 0 था तो कितना था a, और t टाइम पे कितना रिएक्ट हुआ, x इतना रिएक्ट हुआ, तो रिमेनिंग कितना होगा. सो फाइनल कंसंट्रेशन रिमेनिंग दैट इज at remaining at is equal to कितना रहेगा, a minus x. मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 5,000 दिए थे, आपने 4,000 खर्च कर दिए, तो बचे कितने हैं, 5,000 minus 4,000 is equal to 1,000. इनिशियल a है, रिएक्ट x है, तो बचा कितना, a minus x. तो दिस इज रिमेनिंग क्वांटिटी एंड दिस इज इनिशियल क्वांटिटी, और ये सीधा इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वी हैव दिस k is equal to 2.303 upon t log base 10 a upon a minus x. ऐसा है. So we got just simple or clear modification of this equation. मतलब ये वाला इक्वेशन भी आप लोग यूज कर सकते हैं और ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं. इसके अंदर क्या होगा, a is the initial amount and x is the reactant, तो remaining is a minus x. तो सीधा x निकालेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो हम लोगों को फाइनल रिमेनिंग मतलब कितना रिएक्ट हुआ ये भी हम इस इक्वेशन में निकाल सकते हैं. बहुत ज्यादा जरूरी नहीं आता है ये इक्वेशन में, बस ये हम लोग न्यूमेरिकल में यही यूज करते हैं, तभी भी हमारा काम बनता है, नो डाउट एट ऑल. बट अगर आपको ज्यादा सिंप्लीफाई करना है तो इस तरीके से इस केस इसके अंदर ये आ जाता है. क्लियर विद दिस. नाउ इसका थोड़ा सा यूनिट्स की बात करते हैं. यूनिट्स क्या होंगे यूनिट्स यहाँ पे, अब देखिए k इज अ रेट कांस्टेंट, यूनिट क्या होगा, a0 कंसंट्रेशन टर्म है, at कंसंट्रेशन टर्म है, दोनों का रेशियो है, और दोनों का रेशियो होगा तो दोनों के कंसंट्रेशन कैंसिल हो जाएंगे. तो ये मोल्स पर डीएम क्यूब है, ये मोल्स पर डीएम क्यूब है, दोनों यूनिट्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. और यहाँ पे टाइम जो है वो टाइम रहेगा. टाइम होता क्या है, सेकेंड्स मिनट्स होता है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में ऊपर आएगा तो पर होगा, तो यूनिट्स क्या बचेंगे, क्या पर सेकेंड, पर मिनट, या फिर पर आवर, लाइक दिस वन, per day, per week. So these are the units. So these are the units for this K or rate constant, what we can say. इसके लिए मिल जाते हैं हम लोगों को. So that is what we can say unit. Clear with this? So that is what we can say integrated rate law for first order reaction. अभी first order reaction का rate law मैंने थोड़ा सा slowly पढ़ा है आपको, और थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, इसलिए समझा जाता है reason behind that. Once you get the first order reaction, zero order reaction आपको easily समझ में आता है. Now we have to discuss here. It's a rate law. जो हमने देखा उसका हमने कन्वर्जन किया इंटीग्रेटेड रेट लॉ में, and this is for first order reaction. Now we have to discuss half life period for some of the reactions. The reason behind that, देखिए कुछ reactions ऐसे हैं, जैसे कि some reactions which are reversible reactions in which equilibrium is attained and this reaction never goes to the completion.
अभी जिस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आता है वो रिएक्शन नेवर गोज टू द कंप्लीशन। फिर इस रिएक्शन के अंदर टाइम कैसे निकालेंगे? हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टाइम? सो टाइम निकाल नहीं सकते उसके अंदर, बिकॉज उस रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम आता है। इक्विलिब्रियम आता है तो क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन। दोनों रिएक्शन का रेट अगर सेम रहेगा तो रिएक्टेड प्रोडक्ट में चला जाता है, तो इमीडिएट प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चला आता है। तो हम समझ नहीं पाएंगे कि हाउ मच रिएक्शन इज कंप्लीटेड, हाउ मच रिएक्शन इज रिमेनिंग। So in such a reaction which never goes to the completion, that there may be a equilibrium attained or time frame may be a long, in such a reactions half life period is used. So half life period नाम का terminology उसके अंदर यूज किया जाता है। What is this half life period? जनरली आप भी घर में कभी कभी इधर उधर आप सुनते होंगे, अगर कोई थोड़े से मिडिल एज लोग हैं तो आपको कभी कभी कहते होंगे कि हमारा तो क्या अभी आधा लाइफ चला गया, अभी क्या आधा ही बचा हुआ है, लाइक दैट, है ना? मतलब कोई अगर अराउंड 40s वगैरह आ जाता है तो वो ऐसा बोलते बोलते बोल देते हैं कि अभी आधा लाइफ तो हमारा चला गया, अभी आधा लाइफ बचा है, अभी आपकी जिंदगी है, आप देखो। ये तो आप 12 के बच्चे तो बार बार सुनते होंगे आप घर में कहीं इधर उधर। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि हाफ लाइफ इज डन। आजकल एवरेज लाइफ अगर 60, 70, 80s का माना जाता है, तो 40 मतलब हाफ लाइफ इज डन, लाइक इस तरीके से माना जाता है। उसी तरीके से the reactions which never goes to the completion because of the time required for the completion of the reaction may be too much, or sometimes it may happen that reaction may acquire a equilibrium, और equilibrium आएगा तो reaction कभी final पे नहीं जाएगा, because total reactant product में कभी convert नहीं हो जाएगा, so reaction complete होगा ही नहीं। so उस reaction के केस में half life period नाम की terminology यूज की जाती है, जिसके आधार पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि how much time that reaction will took for the completion, and in how much time that half reaction is completed. So इसलिए half life period का concept आ जाता है। तो half life period क्या है? The time required to react half of the initial quantity. Time required to react half of the initial quantity. Initial quantity कितना है हमारा? A naught. A naught is initial quantity or initial concentration. So initial का आधा कितना होगा? A naught by 2. Initial concentration A naught है, और A naught का आधा कितना होगा? A naught by 2. तो initial concentration is A naught, और हाफ लाइफ के बाद कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? A naught by 2, और उसके लिए जो भी टाइम लगेगा दैट टाइम इज नथिंग बट द हाफ लाइफ पीरियड। सो हाफ लाइफ पीरियड देखिए, द टाइम रिक्वायर्ड टू रिएक्ट हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ऐसा नहीं कि हाफ टाइम में कितना रिएक्शन कंप्लीट होगा, ये अलग रवैया है। आधा कॉन्सेंट्रेशन होने के लिए जो टाइम लगता है उसे हाफ लाइफ पीरियड कहा जाता है, एंड दैट इज व्हाट वी कैन से अकॉर्डिंग टू हाफ लाइफ फॉर द रिएक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, but we'll discuss in tomorrow lecture. So till then, thank you very much. Tomorrow go through these topics well. Once you get it well, then easily we can go for the second one. Okay? So till then, bye bye. Thank you very much. See you tomorrow.